मैम टेंसेस मैम टेंसेस पढ़ रहे थे लास्ट Tenses, okay. Fine. So Ma'am. we were on which tense? मैम पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल बाकी थे Past perfect tense. Okay. Present perfect done? यस मैम Okay. तो रुको मैम चेक कर लेता हूँ फ्यूचर Check first. यस मैम हो गया मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया मैम Again, this and this as it is. Change is here only. Yes. Any subject? Huh? Rahul. Subject? मैम राहुल बोला हो रहा क्या कह रहे हो? मैम राहुल बोल रहे हो राहुल मैम Rahul. चलो. Rahul had. Now any verb? Achieve. ट्रेन मैम Achieve. What? Achieve. राहुल हैड मिस्ड हिज ट्रेन Okay. Rahul had one more subject. Mr. Raj. Ma'am, we can write that Pooja will have achieved the record for drawing competition. Mr. Raj have achieved the award for his contribution to the society. चलो करो. Write this much. Ma'am, Yes. done ma'am. Ma'am, can you take Diana inside? Please everyone mute. मैम डन मैम मेरा तो कब क्या हो गया मैम कब का मतलब कब? मैम आप लिख रहे थे तभी हो गया था मैम आपके साथ ही क्यों मेरे साथ लिखा? मैं एक्सप्लेन करते तो नहीं लिखना होता है. This No, is the ma'am. rule for everyone. फिर आपका स्टडीज में ध्यान नहीं होता हो कि आप समझ ही नहीं पाते हो. चलो नेक्स्ट. मैम मुझे इतना Ma'am, लेट 1 क्यों लिया minute. अंदर Ma'am, 1 minute. मैं भी बहुत लेट अंदर आई मैम मेरा बाकी है हाँ हाँ ओके ओके. शांति रखले लखवा दे का तो तू कर दे. What happened?
Thank you. मैम Yes. मैम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जैसा ही आएगा ना? नहीं, दोनों सेम कैसे हो सकते? वो नहीं मैम, विल और बीई मैम. अभी पहले हम इसके बाद ये सबको कर रहे थे, then we move on. First, someone is unmuted, please. Ma'am, please side. Done, ma'am. Future perfect. चलो, subject. We. Rajesh. Lunch at Uber. One more. They Subject. Have dinner today. What? They, ma'am. They will have dinner today night. India will have We electric. will have dined. Dine है verb. Dinner है noun. Okay? So यहाँ पे verb लगेगा B3. They will have dined together. Ma'am, can I say? Ma'am. Arey, let me finish once. Yes. India will have more electric cars after few years on road. ये जो आपने बताया ना, ये बेटा पोजेशन शो करता है कि हमारे पास क्या होगा. Will have होना, उसके बाद आपका वर्ब नहीं है. आपने यहाँ वर्ब की प्लेस पर मोटर कार लिखा है. मोटर कार तो नाउन्स है. Yes. मैम इलेक्ट्रिक कार बोला था. मतलब whatever electric car. Ma'am, can I say one? Who is this? Ma'am, Jana. Yes, Diana. He will come after this. And batting. क्या he will? He will come after this
and batting. They will come. तो will के बाद ये have कहाँ गया? He will have to come. नहीं, वो अलग हो जाएगा. They will have के बाद to come लगा रहे होते हैं. It won't be future perfect. मैम दे हैव टू मैम टू नहीं आता ना, क्या? तो हम जब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो वी हैव के बाद टू नहीं लगाना ना. ये देखो ना, रूल लिखा हुआ है मैंने. Subject will have V3. Ma'am, you will have to come in my birthday party. No. Ma'am, we can write they will arrive tomorrow. अरे they will arrive tomorrow मतलब they will have to you have removed. Ma'am, can I? Who is this? Diya. Diya, yes. She will have cooked the dinner. हाँ, she will have cooked the dinner next morning. Next evening for the whole family. Ma'am, exam is a verb. नहीं. Examine verb. Ma'am, can I say Dhwanit? Who is this? Ma'am, Dhwanit, ma'am. Dhruv. Ma'am, Dhwanit, ma'am. Dhwanit, yes, Dhwanit. They will have dinner tonight. What? They will have dinner tonight. Dinner, ma'am. अरे डिनर और लंच के बाहर कुछ बोलो. वो तो डिनर का तो बोला उसने अभी. मैम मेरे में नेट गया होगा शायद से, मेरे को नहीं सुना है या. अच्छा. बोर्ड पे लिखा ही है मैम. हाँ, ये भी तो. Done? Yes, ma'am. Yes, Done, ma'am. ma'am. Yes. So, okay, these many tenses will do. Okay. Okay. Okay, ma'am. Now I will be dictating the sentences and you will have to identify the tense only. Correct? We don't have to write, ma'am. Okay, ma'am. You have to write. And dictating you will write. Okay, ma'am. मैम नेक्स्ट पेज पे लिखे तो चलेगा मैम, दूसरे पेज पे. हाँ भाई, कहीं भी लिख दो. अरे 7 के स्टूडेंट्स ये तो अपने आप ही डिसाइड करेंगे. ओके मैम. Ma'am, please start. Okay. स्टार्ट मैम. Who is saying this? I will start now as soon as I get the exercise. मैम ध्यान चलो. बोली शायद. My watch keeps good time. मैम My प्लीज. watch. No one will speak in between because if you speak, other gets disturbed. My watch keeps good time. My watch keeps good time. मैं आपने गुड्स बोला या फिर गुड? G-O-O-D, good. ओके मैम. Next, these grapes are
tasting sour. Ma'am, please repeat once again, ma'am. Jia, have you written a single sentence? Ma'am, I'm thinking my cable is not open. What are you saying? Ma'am, your voice is not clearly audible because my wire is not completely fitted. Jia, first of all, my voice is very much audible to everyone. You were busy talking to someone. I am observing you since 3 minutes. Ma'am, I'm seeing in the screen that your voice was not audible. I'm trying to say. Jia, I am observing you since 3-4 minutes. You were not paying attention. You were not paying attention at all. I saw you. I was speaking, I was dictating, and you were seeing somewhere else. Ma'am, please repeat second one, ma'am, once again. The second is, these grapes are tasting sour. Grapes, ma'am. ग्रैप्स नहीं होता, ग्रेप्स होता है यार. कैसी प्रोनाउंसिएशन है ये? These grapes, grapes, grapes are tasting sour, sour. Done, ma'am. Done. I have known him. I have known him, Known, known him for a long time. Next, we were listening to the radio. We were listening to the radio all evening. We were listening to the radio all evening. Done, ma'am. Next, I had written the letter. I had written the letter before he arrived. Ma'am, please repeat once again. I had के बाद, ma'am. I had written the letter before he arrived. See, I am repeating 2-3 times, so better to pay attention here only. Next, we will know. We will know, K-N-O-W, know our exam results. Our exam results in May. In May.
by next, by the end of, by the end, end of this month, I will have worked here. I will have worked here for 5 years. By the end of this month, I will have worked here for 5 years. How many have done? 7. 7 done. 8 number we will. Ma'am, total 8. 8 No, done ma'am. or 8? No, ma'am. Total 7 7. done. We are on 8. Mr. Abdul Rahman. Ma'am, please repeat. Mr. Abdul Rahman is arriving. Mr. Abdul Rahman is arriving this evening. Ma'am, it is this evening now. Yes. Next, he will have left before you go to see him. How many we have done now? Ma'am, 9 done. Ma'am, 10th number. One more. Yes, ma'am. He was always grumbling. He was always grumbling. Ma'am, what is grumbling? Grumble means किसी न किसी बात पर dissatisfied रहना और बोलते रहना कि हाँ ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बेकार हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, कुछ ना कुछ बोलते रहना. Okay, ma'am. Ma'am, now we can write answers. Yes, write the answers. मैम एक बार फिर से वो लास्ट सेंटेंस बोलिए ना. He was always grumbling. ओके मैम. Done? Yes, ma'am. Rest all? मैम 1 मिनट. तो मैम आधा हो गया, आधा बाकी है.
हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैम डन। ऑल यस Yes, ma'am. अच्छा ओके। मैंने रैंडम चूज किए हैं सेंटेंसेस, तो आप लोग आंसर बोलते टाइम पहले सेंटेंस डिक्टेट करना देन आंसर। ओके ओके मैम। एंड वी विल गो, वेट अ मोमेंट। फर्स्ट खुशी, खुशी मेवाड़ा। Ma'am, या my watch gives good time. Simple present tense. वेयर आर यू खुशी, आई एम अनेबल टू सी यू। या ओके करेक्ट, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। नाउ सेकंड टर्न विल बी प्रसन्न। यस मैम। Speak up, Prasann. Click on your video first. Prasann. Prasann, unmute and click on your video. Prasann, you are not giving any response. Rutva Patel. Rutva. Rutva Patel. Better than I remove you from the meeting. मैम कैन यू हियर मी? Yes, Prasann. Now I मैम can. मैंने hear पूरा you. आंसर 2 बार बोल दिया मैम, आपने सुना ही नहीं? नहीं, आवाज नहीं आई थी। मैम मेरा माइक गलती से ऑफ हो गया होगा। बोलो, तुम पहले वीडियो तो ऑन करो। हाँ बोलो। मैम लगता है इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो रुत्वा, रुत्वा पटेल, प्लीज क्लिक ऑन योर वीडियो, अनम्यूट। I saw you just clicked it on. I saw it, Rutva. Better than I remove you from the meeting because your video was on. I just saw you just clicked it on, then you again clicked it off. मैम मेरा नेटवर्क जा रहा है इसलिए मैम ऑफ हो रहा है वीडियो। कौन? मैम मैं बोल रहा हूँ प्रसन्ना। अच्छा मैम मैं भी हर्ष हूँ मैम। रुत्वा ट्राई करो आप। रुत्वा आप अपना वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर देती हूँ फिर मीटिंग से। ऑन करती हो फिर ऑफ कर देती हो। मैम कैन आई से द आंसर ऑफ सेकंड वन? ध्वनित मैम। Ma'am, I am Harsh. I can't open my video first because here ma'am network issue. So I open my video, network was gone ma'am. Ma'am कौन it's बोल रहे हैं? ma'am Harsh. Ma'am यहाँ पे लिखा है, मैम यहाँ पे लिखा आता है your network bandwidth is low ma'am. किसका? तो रुत्वा का चेक करो। मैम मेरा डाउन हो गया। हर्ष तो ओके। मैम रुतवा भी ओके है। क्या? मैम रुतवा का नेटवर्क भी फुल है।
हाँ, तो she is not showing herself. And I saw her. Now purposely she has darkened whatever, I don't know what she has done, but she is not responding. मैम उसने कैमरे में फिंगर दबा दिया या तो फिर कुछ चिपका दिया है ब्लैक कलर का। हाँ, कुछ ऐसा purposely she has done that. क्योंकि मैम उसका कैमरा तो ऑन है लेकिन उसने कुछ चिपका है या फिंगर लगा दिए है। चलो okay. Yes, okay, fine. Dhara, you tell. कौन मैम? Yes, You ma'am. tell second. These grades are testing sore. Simple present tense. Okay. Next. Mitwa. मैम Mitwa next. Dhvanit, you say next. Can you hear me? Ma'am, long Ma'am, time. your voice is cracking. Ma'am, हाँ, बोलो. ma'am, बोलो, कौन बोल रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? No मैम आ रही है। नो मैम क्लियर आ रही है। मैम Yes, ma'am, आपकी clear. वॉइस कट करके आ रही है। कौन है ये? बोल कौन रहा है ये? मितवा। मितवा. मितवा, आपकी आवाज ऐसी आ रही है बेटा, मेरी तो क्लियर ही आ रही है सबको. चलो कोई मैम. बात नहीं, नेक्स्ट. बोलो मैम। मैम मैं फोन से ज्वाइन। हाँ, दूसरे से ज्वाइन करो. चलो ध्वनित, यू स्पीक अप. I have known him long time. ज्वाइन करे तो आप मुझे मीटिंग के अंदर ले लो ना। हाँ, मैं ले लूंगी, तुम करो तो सही पहले. ध्वनित, स्पीक अगेन. Yes, ma'am. I have known him long time. Present perfect tense. ओके. नेक्स्ट, तीर्थ. Yes, ma'am. We are listening to the radio all evening. Present continuous tense. करेक्ट. नेक्स्ट, ध्याना. Yes, ma'am. I had written the letter before he arrived. Past tense. Simple past tense. उससे पहले वाला चेक करो. I had written. I had written the letter before he arrived. हाँ, तो I had को देखो ना. I had written, उसको चेक करना है. Simple future tense. अरे रे रे, नहीं. वेदांत. Yes, past perfect. Next, Diya. Yes, ma'am. We will know our exam results in May. Simple future tense. Correct. Next, Jia. Yes, ma'am. By the end of this month, I have worked here for 5 years. जी, आपके आसपास बहुत नॉइज होता है, कुछ आवाज ही नहीं आती. ओके मैम, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ. हाँ, चलो इसका आंसर कोई और बोल दो. मितवा, कैन यू हियर? Yes, ma'am. Now I can hear you. हाँ, तो फिर बताओ कौन सा बोल रहे हैं. सेंटेंस बोलो ना. मितवा विल आंसर. Ma'am, 7 number. By the end of. By the end of this month, I will have work here for 5 years. Ma'am, future continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट. Perfect tense. कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा याद रखेंगे ing आएगा. ओके. Okay, ma'am. नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट? 3. 3. चलो. चलो दिया, आप बोल दो नेक्स्ट. Yes, ma'am. Mr. Abdul Rahman is arriving this evening. Present continuous tense. नेक्स्ट जिया, आप.
हाँ, yes, ma'am. He will have less before you go to see him. Ma'am, it will be future, simple future tense. It is future perfect. Will have. Have आ गया तो perfect है. Will है तो future है तो future perfect. Okay, ma'am. Done all. No, ma'am. No, One ma'am. is left. One is left. चलो बोलो तो कुछ sentence बोलो. He was always grumbling. He was living. He was always grumbling. He was always grumbling. हाँ तो past continuous है ये तो. Yes. मैम एक बार फिर से 7 का बोलो ना, मैं अंदर आ रही थी और मैंने नोट नहीं किया. 7 का आंसर बोल दो उसको. future perfect tense. Okay. मैम 9th का आंसर बोलो ना मैम. बोलो भाई 9th का. Future perfect. Future perfect tense. Okay मैम. अच्छा मैंने आपको राइटिंग स्किल्स में क्या क्या करवा दिया है. पैराग्राफ हो गया Story writing also. बस. Yes मैम. लेटर नहीं करवाया था. नहीं मैम, No, लेटर ma'am. नहीं करवाया था, पैराग्राफ राइटिंग करवाया था. और लेटर नहीं नहीं करवाया था. मैम नहीं करवाया. मैम मैंने तो सिर्फ स्टोरी राइटिंग की है मैम. स्टोरी राइटिंग चलो मेरे को तो लेटर करेंगे आज. लेटर राइटिंग हेडिंग डालो. मैम हमारे स्कूल में लिसनिंग स्किल्स करवा दिए हैं. किसके स्कूल में. मैम मेरे और जिया के. लिसनिंग स्किल्स. Yes ma'am. अब यहाँ पर मैं कुछ ऑडियो क्लिपिंग तो नहीं चला सकती या चला सकती हूँ ऑडियो क्लिपिंग. तो आपको कुछ चलो वो प्लान करनी पड़ेगी फिर मुझे कि ऑडियो क्लिपिंग चलाऊं या मैं खुद ही कुछ बोलूं और उसके बाद उस पे क्वेश्चंस पूछूं. मैम मैम को दिखाओ कैसे चलाया है क्या ये लिसनिंग स्किल्स. हमने पहले क्वेश्चंस लिखवा दिया और फिर मैम ने बताया, हम आंसर लिखते गए साथ में फिर ठीक से लिखे. मतलब पहले आपको क्वेश्चंस लिखवा दिए फिर मैम ने कुछ ऑडियो मतलब सुनाया या खुद ही मैम ने बोला. मैम खुद ही बोला, उन्होंने पैराग्राफ लिख के लाए थे वो. ऐसा है. Yes ma'am. मैम स्कूल में से बोला है कि अगस्त में मेरी एग्जाम होगी. अगस्त में किस चीज की एग्जाम. SA1. SA1 मैम मतलब 40 मार्क्स की होगी. 40 मार्क्स की होगी. तीन तुम्हारा स्कूल कौन सा है. केंद्रीय विद्यालय सैक. 40 मार्क्स में चैप्टर्स कितने आएंगे. मैम वो अभी सिलेबस नहीं दिया है. हाँ वो SA1 जैसा ही होगा तुम्हारा. Yes. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे. यूजुअली सबसे पहले हम एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल के लिए या हम किसी पोस्ट के लिए कुछ अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हैं. ठीक है. सो मैम तो फिर एप्लीकेशन की हेडिंग डाले. हाँ वो काइंड ऑफ लेटर ही है ना. ओके मैम आपने इससे पहले एक लेटर लिखाया था, इनफॉर्मल हाँ. लेटर लिखाया था. तो मुझे लगता है कि मैंने आपको लेटर करवाया आप लोग ने. हाँ मैम. मैम मैंने अभी चेक किया तो आपने लिखवाया था मैम. यार तुम लोग बोला तो करो कि लिखवाया है. मैम बताओ. हाँ कौन सा था. स्टोरी राइटिंग लिखवाया है. Ma'am, write a letter to your cousin brother borrowing his camera during holidays. याद आया सबको.
मैंने नहीं लिखा, शायद मैं join मैम पे मैं नहीं link था। आया मैं नहीं थी, मैं नहीं थी उस वक्त। तीर्थ मैं आपने भी लिखा है? तीर्थ आपने लिखा है? तो फिर मुझसे आपका क्या पहले कहते करवाया हैं? होगा। अरे सुनो ध्याना, आप शायद दूसरे बैच में होंगे तो मैंने वहां करवाया होगा। हाँ मैम, शायद हो सकता यहाँ है। आपने नहीं करवाया। हाँ तो यहाँ हम करवाए। मैम कैन आई ओपन माय वीडियो, में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मैम मेरा थोड़ा। Who is this? वनीत मैम। हाँ ओके, ओके। चलो ठीक है। एप्लीकेशन लिखवा रहे हो? हाँ एप्लीकेशन। मैम वो स्कूल में देते हैं भाई ना। स्कूल में या फिर कभी आप जॉब के लिए कहीं पर आपको अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन वहां पर भी तो देनी पड़ती है। चलो, नाउ राइट a letter to the postmaster for requesting him to send मैम प्लीज रिपीट आफ्टर हिम। ओ यार मैं सुनो देख कर नहीं बोल रही हूँ। To send, बता दूं? कोई बोल दो। Write a letter to the postmaster for requesting him To send all his letters मैम all his letter or all his letter? all all his ALL letters ALL all HIS his letters to your new address। all his लिखा है ना, his की प्लेस पर your करो। all your letters to your new address। अब इससे मालूम पड़ रहा है क्वेश्चन से कि आपका घर का एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है। अब आपको जो भी लेटर्स आपके एड्रेस पे आए वो न्यू एड्रेस पे आए, ओल्ड एड्रेस पर ना आए, इसके लिए आप पोस्ट मास्टर को एक एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो जब ऐसी फॉर्मल एप्लीकेशन होती है ना, फॉर्मल मतलब कि आप किसी ऐसे को लिख रहे हो जिससे आप कुछ काम करवाना है आपको। इनफॉर्मल मतलब आपको अपने पेरेंट्स या रिलेटिव को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल जो होते हैं ना वो पेरेंट्स और रिलेटिव्स को नहीं होते, किसी ऑफिसर को, टीचर को, बॉस को या किसी अननोन को होते हैं। अब हाँ, आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में अपना एड्रेस लिखना है। मैम न्यू वाला नहीं लिखना ना? न्यू वाला लिखेंगे ना, जहां पर आप शिफ्ट हो चुके हो। ओके मैम सच में मैं शिफ्ट हुई हूँ, मेरा घर रिनोवेशन करने के लिए किया है ना, इसलिए मैम हमने मैं भी भी। न्यू हाउस लिया है। अच्छा फिर तो और भी अच्छा। मैम मैं भी। सारे शिफ्ट हो गए हो क्या? आपके एड्रेस के बाद लीव 1 लाइन और फिर डेट।
डेट कैसे लिखेंगे? 3rd TRD 3rd July, 2021. 3rd July, 2021. मैम मैम हाँ मैम जी, हमें एड्रेस के बाद क्या लिखना है? 1 लाइन लीव करके मैंने डेट लिखवाई है। ओके मैम। उसके बाद फिर से लीव 1 लाइन और वो पोस्ट मास्टर का मतलब जो एड्रेस है ना, आप लिखेंगे द पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद। द पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद। और वहां का जो पिन कोड अगर पता हो तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद लीव 1 लाइन और आप लिखेंगे लेफ्ट साइड डियर सर। वन मैम लाइन डियर सर की जगह पे रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। ठीक है, रेस्पेक्टेड पता है किसको लिखते हैं? आप जिसको जानते हो, जैसे मान लो आप स्कूल में हो, स्कूल में आप किसी बड़े को लिख रहे हो, टीचर या प्रिंसिपल को, तो वो रेस्पेक्टेड है मैम बिकॉज यू नो देम। अब ये सर को आप इतना जानते नहीं हो, बट डियर सर ओके, मतलब ये डियर जो है ना वो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में यूज हो जाता है। मैम हाँ जी, मैम पिन कोड है 38009 पोस्ट ऑफिस का। हेडमास्टर ऑफिस का। यस हाँ, तो जो भी है वो कर देना। उसके बाद पिन कोड रिपीट बोलो ना। चलेगा, वो तुम बाद में ढूंढ लेना, कर लिख देना, ठीक है? 38009। 38009। अरे 6 डिजिट का होता है, 380,009। अब उसके बाद डियर सर के बाद जो नीचे लाइन है ना, उस लाइन में ना सेंटर में लिखेंगे। ओके, सेंटर में लिखेंगे SUB, दैट मीन्स सब्जेक्ट, कि आपका एप्लीकेशन का मेन टॉपिक क्या है, मेन बात क्या करनी है आप। सब्जेक्ट। आप लिख सकते हैं रीडायरेक्शन ऑफ लेटर्स टू न्यू एड्रेस। रीडायरेक्शन ऑफ लेटर्स टू न्यू एड्रेस। लिखना है। सब्जेक्ट के सामने लिखोगे ना, SUB मैंने आपको लिखवाया, उसके बाद ही तो बोल रही हूँ। रीडायरेक्शन ऑफ लेटर्स टू न्यू एड्रेस। तो अब उसके बाद आपका मेन आएगा, लेकिन अब हमारा टाइम फिनिश हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का लिखवा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, सो राइट नाउ तो यू हैव योर SS lecture, wait, यस let me यस check. मैम। हाँ, मैं बोल क्या? बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। हाँ, अभी मुझे जाने दो। बाय मैम।
गुड इवनिंग मैम। किसी को भी नहीं बोलना है, सबको मैंने बोल दिया गुड इवनिंग। चलो कल के एग्जाम के लिए रेडी है सब? यस मैम। यस मैम। मैम इजी रखा है ना मैम टेक्स्ट में से ना? हाँ मैम, हिस्ट्री का थोड़ा इजी रखना, हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं आता। यस मैम, मेरे को सिविक्स नहीं आता। अच्छा फिर अभी तक का पेपर बन गया होगा। मैम ये तो मुझे परफेक्ट आता है। मैम हिस्ट्री का थोड़ा इजी रखना, बाकी सब हाँ जितना भी मैम, आएगा हिस्ट्री चलेगा। बहुत हार्ड है। मैम लक्ष्य मैम मेरे को हिस्ट्री और सिविक्स थोड़ा कम आता है मैम। नो वरी। मैम आज क्विज लोगे? क्या बेटा? आज क्विज लोगे? एंड 5-10 मिनट्स में आप लोग का रिवीजन ले लेती हूँ। मैम मैम हाँ बोलो। मैम टेस्ट में मैम क्वेश्चन आंसर्स और टेक्सचुअल एक्सरसाइज ही आएगी ना मैम? हाँ सब कुछ टेक्स्ट 1 मार्कर कहीं से भी होगा और क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल होंगे। मैम टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए है वही मैम? हाँ टेक्सचुअल क्या होता है बेटा? टेक्स्ट बुक के पीछे वाले। ओके मैम। चलो नहीं आप अंदर से भी बना सकते हो मैम। हाँ, अभी नहीं। ओके वी हैव कंप्लीटेड ज्योग्राफी 3 चैप्टर्स राइट? यस मैम। यस मैम, पर मैं था तब तो सिर्फ 2 ही किए मैम मैंने। हाँ दूसरा वाला और तीसरा वाला। हम ओके सबके फर्स्ट चैप्टर ही आने वाले हैं ना? सबको स्कूल में फर्स्ट चैप्टर ही आने वाले हैं ना? कल भी मैं सबको फर्स्ट चैप्टर ही पूछने वाली हूँ। ओके ओके मैम। ओके मैम। मैम मेरी एग्जाम अगस्त में होगी। ओके तो कुछ नहीं, शांति है। चलो अभी हमें करना है, हमने सिविक्स का 3rd चैप्टर भी कर दिया है, ठीक है? यस मैम। you all want to start with history today? Yes, ma'am. Okay. मेरे को बुक ले लेता हूँ। मेरे को लगा हाँ मैं भी बुक लेके नहीं गई। क्या बेटा? रिवीजन नहीं करवाना आता, एमसीक्यू नहीं यस पूछना? मैम, आपने बोला था रिवीजन और एमसीक्यू ये दोनों ही करेंगे। हाँ थोड़ा हिस्ट्री का समझा लेती हूँ आज और फिर रिवीजन भी करते हैं हम लोग। ओके ओके मैम। मैं भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लेकर आती हूँ। रुको। मैम चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। कैन आई रीड? उसमें पेज नंबर 48 निकालो आज पहले। पता था मुझे, मम्मी ये भी निकालो क्या? कैसे? Wait for a second. Page number 48 everyone.
ओके, पेज नंबर 48 सबने रेडी रखा? यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज व्हाट अबाउट मुगल एम्परर। हमने लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट जो चैप्टर था थर्ड, वो सुल्तान के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे सल्तनत आए थे और किस तरह से सब कुछ हुआ था, ठीक है। अब जो है वो मुगल एम्परर कैसे यहाँ पे शुरू हुआ, तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है बाबर, ठीक है। अब जो राजपूत एक राजा था, राजपूत राणा संघ, उन्होंने, बाबर है वो अफगान का लीडर था, राजा था, उसको इनवाइट किया, बुलाया कि इंडिया आओ। और उस वक्त लास्ट इब्राहिम लोडी, जो लोडी डायनेस्टी थी, वो रूल कर रहा था, तो ही वांटेड कि बाबर उसको हरा दे, इब्राहिम लोडी की किंगडम को हरा दे और राजपूत यहाँ पे रूल करना कंटिन्यू करे। तो उसने बाबर को ब्राइब किया कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। इस तरह से बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच में बैटल ऑफ पानीपत हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोडी को उसने हरा भी दिया और बाबर जीत गए। पर यहाँ पे आने के बाद बाबर ने देखा कि इंडिया कितना वेल्दी है, बहुत पैसे वाला है, तो उसने बोला मैं थोड़ा सा वेल्थ लेके क्यों चला जाऊं अफगानिस्तान, उससे अच्छा मैं भी अपनी टेरिटरी किंगडम यहीं पे रूल करूं। और इस तरह से जिस राजा ने उसको इनवाइट किया था यहाँ पे आने के लिए, राजपूत रूलर राणा संगा, उसके साथ की बैटल ऑफ कनवा और उस राजा को भी हरा दिया बैटल ऑफ कनवा में। और उसके बाद यहाँ पे उसने उसका किंगडम एस्टैब्लिश किया। सो फर्स्ट मुगल एम्परर हु एस्टैब्लिश हिज किंगडम इन इंडिया वाज बाबर। ओके, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Vanit, व्हाट who was the first Mughal emperor? मैम मुगल एम्पायर। मैम 2 मिनट में मेरा नेटवर्क गया था, आपने पता ही नहीं चला। Yes, please, बोलो। बाबर। बाबर। Who invited him? मैं ही बोलूं? राजपूत किंग। Yes, and to have किसके साथ उसकी लड़ाई करवानी थी उसको? लोडी डायनेस्टी। इब्राहिम लोडी के साथ। वेदांत, what was that battle? बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोडी डिफीट हो गया। फिर बाबर ने सेकंड दक्ष किसके साथ लड़ाई की? मैम जिसने उसको बुलाया था राणा सिंह। हाँ, राणा संगा। और वो बैटल कौन सी थी? बैटल ऑफ कनवा, ठीक है। और इस तरह से राजपूत एट चंदेरी को डिफीट कर दिया और आगरा दिल्ली में उसने उसका एम्पायर एस्टैब्लिश किया। बाबर के बाद आपको अभी कैसे मुगल एम्पायर याद रखना है? बाबर, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, उसके बाद उसका बेटा अकबर, उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये पूरा मुगल एम्पायर है। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। लास्ट मुगल रूलर वाज बहादुर शाह जफर, but he was not powerful. Okay? Okay, ma'am. उसने पैसे के लिए ना अपना आधा एम्पायर बेच दिया था। औरंगजेब ने? उसने पैसे के। औरंगजेब की बात कर रहे हो? नो मैम, वो जो बहादुर शाह जफर था ना, उसने मैम Yes. उसने अपना आधा राज्य बेच दिया था। उसको बहुत पैसे चाहिए थे, वो उसको बहुत बुरी लत थी पैसे की। And British rule had already started till then. ब्रिटिश रूल जैसे तो आधा राज्य जहांगीर ले लिया, जहांगीर के समय से ब्रिटिश यहाँ पे आ गया था ट्रेडिंग के लिए, जहांगीर के समय से। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे हुमायूं। हुमायूं जो है वो बाबर का सन है, पर यहाँ पे हमें एक चीज पढ़ना है। देखो हुमायूं का हमें दिया है 1550, पहले दिया 1530 to 1540, बीच का वापस वो रूल करने आया 1555। वो जो बीच का पीरियड है ना, उसमें शेर शाह सूरी यहाँ पे रूल करता था फॉर 5 years। वो पार्ट मिसिंग है जो मैं आपको बताऊंगी शेर शाह सूरी के बारे में।
अब बाबर की डेथ के बाद हुमायूं यहाँ पे रूल करने आया। हुमायूं काफी स्ट्रॉन्ग रूलर था, ठीक है, उसने बहुत अच्छी तरह से उसका किंगडम रूल किया। इन बिटवीन सूरी डायनेस्टी यहाँ पे डेवलप हुई, शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में पहली बैटल हुई, जिसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा दिया। पर सेकेंड बैटल में हुमायूं हार गया और वो भाग गया पर्शिया। कहाँ पे भाग गया? पर्शिया। काफी साल वो पर्शिया में रहा, फिर उसने उसकी पर्शियन आर्मी के साथ वो वापस आया हुमायूं। शेरशाह सूरी तब तक मर गया था और उसके बाद जो उसका बेटा आया था वो इतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, तो हुमायूं ने उसको हरा दिया और उसका किंगडम वापस रीगेन कर दिया। ओके, सी हुमायूं ने उसका इनहेरिटेंस उसके फादर की तरह ही डिवाइड किया था। अब यहाँ पे मैं आपको वापस, बाबर को सिर्फ हुमायूं का बेटा नहीं था, दूसरा था कामरन, दूसरा बाबर का बेटा था कामरन। तो जो दिल्ली पार्ट था ना वो उन्होंने किसको दिया? हुमायूं को दिया। अब दिल्ली तो मेन कैपिटल था, तो जो कामरन था ना, ही वाज नॉट हैप्पी कि मेरे भाई को इतना ज्यादा दे दिया, तो उसको कब से उसके भाई से रिवेंज लेना था। तो हुमायूं को एक शेरशाह सूरी से प्रॉब्लम था और एक कामरन से प्रॉब्लम थी, ठीक है। रुतवा, इफ यू कांट hear me then check your connectivity. Everyone else are able to hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now see, हुमायूं ने उसकी इनहेरिटेंस उसके पापा की तरह ही डिवाइड किया था। हर एक को एक एक प्रोविजन यानी स्टेट दिया गया था, ठीक है। बाबर ने भी वैसे ही डिवाइड किया था। तो हुमायूं के पार्ट में दिल्ली आया था, उसका भाई था वो कामरन, वो खुश नहीं था। तो जब हुमायूं पर्शिया से रिटर्न हुआ और शेरशाह सूरी को हरा के वो अपने बेटे अकबर को जब लेने गया अमरकोट में, तब कामरन ने उसके बेटे अकबर को कैप्चर कर दिया था, पकड़ के रखा था, ठीक है। तो अब हुमायूं शेरशाह सूरी से लड़ने के बाद अपने खुद के भाई के साथ भी उसने बैटल की और अकबर को बचा दिया और अकबर को वापस अपने पास लेके गया। अब देखो यहाँ पे शेर खान की बात, क्या कामरन बड़ा था? हाँ, बड़ा नहीं था। देखो, द एम्बिशियस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरन वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कंप्यूटर्स। अफगान कंप्यूटर जो शेर खान था ना, तो पहले वॉर में वो उसने जीत गया, पर सेकेंड वॉर में कामरन ने उसको हेल्प नहीं की और जिसकी वजह से हुमायूं डिफीट हो गया और वो भाग गया ईरान। ओके, फिर उसने दिल्ली को वापस कैप्चर किया जब शेरशाह की डेथ हो गई। अब अकबर कैसे राजा बना वो पार्ट आपको नहीं दिया, यहाँ पे मैं समझाती हूँ। हुमायूं रूल कर रहा था, अकबर उसके साथ था। एक दिन हुमायूं को एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का बहुत ही शौक था, तो उसकी लाइब्रेरी में वो पढ़ रहा था एस्ट्रोनॉमी के बारे में, और उतने में नमाज का वक्त हो गया। तो हुमायूं अचानक से खड़ा हो गया, वो भूल गया कि नमाज का वक्त हो गया है, और वो सीढ़ियों से फटाफट नीचे उतरने गया उसकी लाइब्रेरी के सीढ़ी से, और वो गिर गया और उसको सिर पे लग गई, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है, हुमायूं की डेथ ऐसे हुई। पर अकबर उस वक्त सिर्फ 13 साल का था। तो उसके जो मिनिस्टर्स थे हुमायूं के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम लोग अभी बता देंगे कि हुमायूं की डेथ हो गई है, तो अकबर जो माइनर है, हो सकता है कि हुमायूं को किंगडम कैप्चर करने के लिए वो अकबर को मार डाले। अकबर को उसके पहले थ्रोन पे बिठा देना है किसी को बताए बगैर। ठीक है, तो 3 दिन तक उन्होंने बताया नहीं कि हुमायूं की डेथ हो गई है। एवरी डे हुमायूं कॉमन पीपल के सामने कॉमन दरबार पे आता था लोगों को हाय कहने। तो 3 दिन तक उन्होंने हुमायूं के डुप्लीकेट को वहां पे खड़ा किया, जो हुमायूं जैसे दिखता था, दूर से हुमायूं जैसे दिखता था, नजदीक तो उसको लाया नहीं जाता था। और 3 दिन में वहां पे अमरकोट में अकबर की ताशपोशी कर दी, उसको राजा बना दिया, और उसको हुमायूं का जो लॉयल मिनिस्टर था बैरम खान,
उसके देखरेख में रखा। ओके मैम अकबर जब 13 इयर्स का था तब भी वो किंग बन गया था। यस, पर पावर था बैरम खान के पास जो उसका मिनिस्टर था। ओके मैम। नाउ सी, यहाँ पे दिया गया है He died the next year after an accident in his building. हुमायूं में दिया गया ये एक्सीडेंट ये था कि वो लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर गया था हुमायूं। ठीक है, अब अकबर की बारी आती है। अकबर सिर्फ 13 साल का था जब वो एम्परर बना और उसने 3 पीरियड में उसका किंगडम डिवाइड किया था। ये जो पार्ट है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ एक बार मैं मोगल आपको रिवाइज करवा रही हूँ। अकबर उसने सबसे ज्यादा वक्त रूल किया है और सबसे ज्यादा टेरिटरीज उसने कैप्चर किया है। ठीक है, अकबर ने। अकबर के बाद जहांगीर आता है, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ओके, अब हम अकबर वाला पार्ट पढ़ेंगे। पहले अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। 3 पीरियड में उसने रूल किया है, 56 to 70. Akbar became independent from the Bairam Khan. See now what happened? Bairam Khan was helping him, right? पर slowly Bairam Khan के पास सारा पावर था तो वो खुद अपने आप को राजा मानने लगा। अकबर को जब पता चला तो उसने उसको बोला कि आप हज चले जाओ तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, अब मेरा किंगडम मैं संभालूंगा। ऑन द वे हज में बैरम खान को मार डाला। ओके, और इस तरह से अकबर टोटली पावर अकबर के हाथ में आ गए। अकबर became independent of the regent Bairam Khan and other members. Military campaign was launched. उसने सूरी के साथ लड़ाई की, मालवा के साथ किया, गोंडवाना के साथ किया, उसका जो हाफ ब्रदर था मिर्जा हकीम उसके साथ उसकी लड़ाई हुई। सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ को उसने सीज कर दिया, रणथंभौर सीज कर दिया। ये जो चित्तौड़ और रणथंभौर है ना वो महाराणा प्रताप का था और उनके और महाराणा प्रताप के बीच में काफी लड़ाई हुई थी। अकबर ने ये लड़ाई करते वक्त ये भी बोला था कि महाराणा प्रताप इज मोर एफिशिएंट किंग देन मी। महाराणा प्रताप इतने एफिशिएंट थे, पर उसी के फादर इन लॉ को महाराणा प्रताप के ससुर ने उनके साथ गद्दारी की और इसलिए वो अकबर से डिफीट हो गए। ओके, फिर उन्होंने जब गुजरात को कैप्चर किया तब उन्होंने फतेहपुर सिकरी पूरी एक फतेहपुर टाउन खड़ी की, बुलंद दरवाजा खड़ा किया उन्होंने। राइट, फतेह मीन्स विक्ट्री हिंदी में। यस, चलो बताओ और क्या पूछना है? कुछ नहीं मैम, सब समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब जहांगीर भी ना अकबर की तरह ही मिलिट्री कैंपेन करता था। देखो मिलिट्री कैंपेन यानी कि हम बाजू वाले टेरिटरी में वॉर करें और कैप्चर करें। आपने क्या बोला? जहांगीर के बाद में आपकी आवाज नहीं आई मैम मेरे को। जहांगीर के बाद क्या बोला? जहांगीर जब स्टार्ट उसके फादर की तरह अकबर की तरह मिलिट्री कैंपेन करता था। ओके, जहांगीर का रियल नेम सलीम था। उसने ये जहांगीर नाम एडॉप्ट किया था खुद को। वो जहांगीर, जहां यानी वर्ल्ड, रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये नाम उसने, रियल नेम उसका सलीम था और उसने नाम रखा था जहांगीर, रूलर ऑफ द वर्ल्ड। मैम सलीम नाम था? सलीम, ओके। सलीम में क्या होता है? सलीम मतलब ओके। अब उसी का बेटा, जहांगीर का ही बेटा खुर्रम, वो उसके अगेंस्ट गया। ठीक है, और नूर जहां जो जहांगीर की वाइफ थी, ऐसे माना जाता है, ऐसा बिलीव है कि नूर जहां उसको स्लो पॉइजन देती थी। जहांगीर एक बार बीमार हुआ था तो नूर जहां जो उसकी वाइफ है उसने सारा किंगडम संभाला था, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। ठीक है, तो उसने जब एडमिनिस्ट्रेशन संभाला तो उसको ऐसे लगा कि मैं तो जहांगीर से ज्यादा एफिशिएंट हूँ।
और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको दवाइयां देती गई जैसे जहांगीर वीक होता गया। तो ऐसा माना जाता है कि वो दिस इज नॉट अ फैक्ट, इट इज बिलीव्ड कि उसकी डेथ इसके हिसाब से हुई होगी। ठीक है, मैम और मतलब उसी का poison बेटा से उसके मारा गया। अगेंस्ट हो गया था, जहांगीर। नाउ वी कम टू द शाहजहां, द सन ऑफ द जहांगीर। मैम ओके, यस मैम या कुछ डाउट है? मैम बोलो। मैम मतलब उसे पॉइजन से मारा था पॉइजन उसकी से। वाइफ ने। ओके, अभी बस ये तो है, उन्होंने रूल किया था। शाहजहां का गोल्डन पीरियड बोला जाता था, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उसने बिल्ड किए थे और ये सब। तो यहाँ पे आपको इवेंट वाइज मुगल रूलर्स के सिर्फ याद रखने कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। ये चीज आपको याद रखनी है। यस बेटा। मैम शाहजहां का है ना उदयपुर में है ना एक एकदम बड़ा महल है ना, वहाँ पे कैसा कहा जाता है कि 7 बजे के बाद है ना वहाँ पे एंट्री नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे राजा आते हैं। वहाँ पे ऐसा क्या कि वहाँ पे वॉचमैन भी नहीं होता है, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे अंदर 7 बजे के बाद जो जाता है वो कभी बाहर ही नहीं आता है, यहाँ तक कि उसकी लाश भी नहीं मिलती। भांगड़ फोर्ट। हाँ पता नहीं, उदयपुर में है वो। हम लोग गए थे पर मुझे उसका नाम नहीं पता। सज्जनगढ़ की बात करते हो? मैम तो वो कैसे आ मैम गई? नहीं पता, पर वो महल बहुत बड़ा है। मैम वो मैम कैसे वो आ उदयपुर गई? में राजा का महल होगा मैम, बड़ा सा मैम राजा का महल होगा ना मैम फिर ये कौन बैठे लेक्चर में, वापस कैसे आ गए मेरे के? हाँ क्या हो गया? वो जहांगीर का नहीं है मैम, वो जहांगीर का नहीं है। वो मैम है ना, भांगड़गढ़ किला है ना, वो मैम अलग ही है। मैम वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक तांत्रिक था ना, वो उधर के राजा की बीवी से प्यार करता था, और उसको पाने की चाहत में ना उसने उसको स्लो पॉइजन दिया था राजा को, और इस वजह से वो राजा तड़प तड़प के मरा था ना। तो वो मरा नहीं, बट वो बच गया ना, तो अंत में उसने वो तांत्रिक को मार दिया था। तो इसलिए कहते हैं कि वो तांत्रिक की आत्मा वहाँ पे भटकती है। अच्छा, मैं वहाँ पे ऐसे बहुत बहुत सारे लोगों को पूछा था ना हमने कि ऐसा क्यों है, तो वहाँ पे जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है ये सब, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 7 बजे के बाद कोई जाता है ना तो वो कभी वापस ही नहीं आता, इसलिए वहाँ पे वॉचमैन भी नहीं होता है। ओके चलो। वेदांत, फर्स्ट पेज में आओ ना बेटा, पेज नंबर 45। मैम आई वांट टू रीड। हाँ, आज पूरा चैप्टर नहीं खत्म करेंगे हम लोग, डोंट वरी। मैम अब वो रिवीजन नहीं करना? करना है ना, रिवीजन शुरू करना है ना। हाँ मैम। मैं हाफ एन आवर में करवा दो मैम, 6 तो चलो अभी बचे। रिवीजन करते हैं, चलो। ओके मैम। ओके मैम। बाकी के बच्चे चले नहीं जाएंगे। हाँ, मैम प्रसन्न, यही है सब। प्रसन्न भाग जाता है। मैम सबको कल एग्जाम तो है ही ना। मैम उसको लगता है कि वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है मैम। तेरा ही तो भाई। मैम जियो से स्टार्ट करना मैम। नहीं मैम, हिस्ट्री से कर देना पहले, हार्ड सब्जेक्ट। मैम सिविक्स से कर दो, मीडियम सब्जेक्ट। नो मैम, जियो से मैम। मैम हिस्ट्री से। मैम हिस्ट्री से स्टार्ट कर दो। मैम सिविक से करो, ऐसा है तो। ए मेरा वाला है जियो। मैम पर मैं GTPL से कर रहा हूँ। Vanit, which one of the following is a basic life support system? बेसिक लाइक सपोर्ट सिस्टम, एनवायरनमेंट। मितवा, second one. यस मैम। मैम आपको मैम बी माउंटेन, रिवर्स एंड ट्रीज। दिया, हाइड्रोस्फीयर। प्रसन्न, बायोस्फीयर। जिया,
मैम कैमल। खुशी, 5th June. धारा, मैम ह्यूमन बींग। हर्ष, Yes ma'am. 8th MCQ सॉल्व करो। Yes ma'am. Growing plants ma'am. ओके, ध्यानात का तो मैं क्या बोलूं, वो कभी किसी में भी होती नहीं है। रुतवा, सॉल्व दिस मैथ द कॉलम। एवरीवन ऑन योर वीडियो बेटा। प्रसन्न, हर्ष, जिया तुमने ध्याना को बोला था। मैम लैंड इज हाँ मैम, मैंने उसको बताया कि तू वीडियो ऑन रख, फिर तू मुझसे मांगती है, पर वो सुनती नहीं है। आज भी उसको रिमूव कर देते। वो करती क्या है वीडियो ऑफ करके? मैम मैं एक बार इसको पूछती हूँ। पूछ लो, चलो। अगर वो 2 मिनट में आंसर देगी तो ठीक है, अदरवाइज आई विल रिमूव हर टुडे आल्सो। ओके मैम, मैं पूछ के आपको बताती हूँ। रुतवा बेटा, यू हैव टू सॉल्व दिस मैथ द कॉलम। lithosphere, animals and plants biotic, mountain plateau and plants atmosphere. No ma'am, no. शांति से, कुछ जल्दी नहीं है हमें। थर्ड का सी होगा और फोर्थ का बी होगा। चलो कर दो आंसर एक बार तो पता चल जाए। यस मैम। ओके चलो, नो प्रॉब्लम। चलो, आपने जैसे बोला, लैंड का अबायोटिक, एनिमल प्लांट का बायोटिक, माउंटेन प्लेटू प्लेन्स का लिथोस्फियर, गैसेस वाटर डस्ट का एटमॉस्फेयर। ओके बेटा? यस मैम। प्रसन्न, तेरी शक्ल दिखा। खुशी बेटा, तेरा टर्न बाकी है ना? मैम मैंने बताया उसको, उसने बताया हाँ मैं करती हूँ। हाँ, अगर वो 5 मिनट में उसका वीडियो ऑन नहीं करती देन आई विल रिमूव हर अगेन। खुशी, मेरा टर्न भी बाकी है। हाँ पता है मुझे। वाटर। Why you don't answer and why your video is always off? Okay ध्याना। मैम मेरा थोड़ी होता है मैम, मेरा तो ऑन है। ध्याना, मैं क्या समझा रही थी इसके पहले? कौन सा टॉपिक समझा रही थी, जरा बताओ मुझे। You mute yourself बेटा, unmute yourself। चली गई? यस मैम ऐसे स्कूल में, मेरी स्कूल में भी बहुत नाटक करते हैं, पहले माइक ऑफ करके बोलते हैं और बाद में लेफ्ट हो जाते हैं। हाँ, फिर बोलते हैं नेटवर्क का प्रॉब्लम था। मैम वो बोलते नहीं है, सिर्फ मैम ये लिप्स स्कूल हिलाते में भी ऐसा ही करती है, वीडियो ऑन नहीं करती। ओके, खुशी। प्लैनेट। हाइड्रोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अ प्लैनेट मैम। बायोस्फीयर बेटा बोलना है। चलो, अभी कौन बाकी है? यहाँ पे सब बाकी है। वेदांत। Two main constituent of earth are natural and man-made. Okay, अब बाकी है। मैम मैं तीर्थ। हाँ पता है मुझे, तीर्थ, दक्ष, चल तीर्थ। Third is the hard top layer of the earth. क्रस्ट। लिथोस्फीयर बोलना है बेटा। दक्ष। यस मैम। Dash modify the natural environment. ह्यूमन बीइंग। चलो अभी वापस शुरू करते हैं। धारा चलो बताओ, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। यस मैम। मैम फॉल्स। वेदांत सेकंड बताओ। यस
दिया थर्ड बताओ. True, ma'am. मितवा फोर्थ बताओ. ट्रू मैम. फॉल्स है बेटा. नो लाइफ कैन एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में तो तीनों हाँ स्फीयर मैं है बायोस्फीयर ही में ना. तो हाँ तो फिर हर्ष फिफ्थ बताओ. मैंने आंसर क्लिक कर दिया, वो बताओ उसके पहले. यस मैम, मैं बता रहा हूँ मैम. फॉल्स मैम. हाँ तो सच आंसर बता. कंसिस्ट ऑफ व्हाट? अबायोटिक कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मैम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. मैम 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 मेरा मैं सेकंड टाइम नहीं हुआ. हाँ मैं कर रही हूँ दूसरी. मेरा भी नहीं हुआ. दूसरी शीट कर रही हूँ. मैम ध्वनित मैम. मैम मैम बायोस्फीयर में तीनों आ जाते हैं मैम. एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मैम. बायोस्फीयर में यस. तीनों का मिक्सचर होगा बायोस्फीयर. मैम थोड़ा डाउट था मैम इसलिए. यस बोलो बेटा. मैम अगर हम कोई भी चैप्टर कंप्लीट करें ग्लॉसरी लिख के, तो हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं? चलो हाँ लिखने हैं. ओके मैम. जिया चलो अभी आंसर दो. ट्रेड इन विच गुड्स आर ट्रेड बार्टर विदाउट. ट्रेड. ध्वनित. What do plant and animal kingdom make together? मैम हाइड्रोस्फीयर मैम. Biosphere बेटा. What do plant and animal kingdom make together is what बेटा? बायोस्फीयर. मैंने अभी तो इसका आंसर दिया थोड़ी देर पहले. रुतवा थर्ड वन. Ma'am, I can't see the question. Can you speak the question? Third one. Life bearing layer on the earth is lithosphere, hydrosphere, atmosphere or biosphere? Biosphere. Yes. Prasan. मैम 5 जून. चलो. तीर्थ. Yes ma'am. Land. दिया. Humans. वेदांत. क्या बेटा? You are not audible properly. मैम ये saying A1. Daksh तेरा turn. Eighth one. Yes ma'am. Lithosphere is made up of rock and minerals and soil. Very good. Kushi. Which is not a natural ecosystem? Fishing pond. Yes. चलो. कौन बाकी रहा? सब आ गए ना? मैम फिर से मेरा ले लो मैम. हाँ फिर से शुरू करेंगे ना. ध्वनित 10th वाला. Which among the following terms of utmost signification of dynamic resource of management and point the. मैम इसका नहीं पता मैम, थोड़ा डाउट है मैम. ट्राई तो करो.
management was coined in Brundtland Commission report? मैम B1. Sustainable development. देखा तुमने तुक्का मारा फिर भी राइट हो गया। मैं बाकी हूँ। मैम मैं तब नहीं था मैम, जब आप ये करा रहे थे मैम तब मैं नहीं था मैम। इसके पहले में भी मैम। हाँ मैं बाकी हूँ। मैं कौन? मैं मितवा। हाँ मितवा बोल, तू बोल दे बस चल। मैम आप एक बार 10th क्वेश्चन फिर से दिखाओ ना। हाँ दिखाती हूँ ना बेटा। मैम सिम। एक मिनट जिया को 10th वाला वापस देखना। मैं बता दूं जिया कहाँ पर है ये टेक्स्ट बुक में भी, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। मैम मेरे पास अभी जियोग्राफी की नहीं है, बट मैं एक पेज में नोट कर लेती हूँ पेज नंबर। मैम जब आप हिस्ट्री और सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 करा रहे थे तब मैं नहीं था मैम, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मैम। चैप्टर नंबर 1 करा रहे थे ना, छोड़ दो, 10 वाला छोड़ दो, इसको मैं चैप्टर में देखूं। ये चैप्टर के बाहर से पूछा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग 11th वाला मितवा दे रही थी ना आंसर, बोलो। हाँ मैं माउंटेन रिवर्स एंड ट्रीज बी। चलो प्रसन्न अब तू बोल। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन एक्चुअली तो। मैम 12th का ना? यस बेटा। मैम ह्यूमन बींग्स। धारा 13 वाला बताओ। Yes, ma'am. Interact and needs. चलो कौन बाकी है अभी? दक्ष। Yes, ma'am. Ma'am 14 मेरा वाला। A dash is necessary between the natural and human environment. Perfect balance. मैम मेरा बाकी है। जिया का बाकी है? हाँ मैम। आप बताओ चलो। लैंड। हाँ, is not a component of human environment. बराबर ना लैंड? हाँ मैम। चलो अभी किसको बोलना है? मैम कैन आई से? चलो अभी वापस शुरू करते तीर्थ से। हाँ बोलो तीर्थ। यस मैम, कौन सा वाला? मुझे कॉल आ गया था। 16. The dash holds the atmosphere around the earth. मैम ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes, gravitational pressure. Vedant 17:1. Diya 18:1. See, it is the thick layer of air that surrounds the earth. It is the thin layer, not the thick layer, beta. Okay, Thin ma'am. layer of the air that surrounds the earth. Okay, beta? Okay. मितवा 19 वाला। हाँ मैम। मैम एनिमल्स must learn to live and use their environment. Animals को लर्न करना चाहिए क्या? नो हमें मैम ह्यूमंस को हमें लर्न करना चाहिए ना? हाँ मैम। धारा which is not the major domain of the earth. Ma'am, troposphere. तो ट्रोपोस्फियर क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। वो ये 4th चैप्टर जब ज्योग्राफी का पढ़ेंगे ना, वो लेयर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ये वाला मैं स्किप करूंगी। 21 ये सबको आता है, 22 भी सबको आता है। चलो अब हम हिस्ट्री करेंगे। मैम सिविक्स का आपने एक ही क्वेश्चन पूछा? क्या बेटा? सिविक्स का एक ही क्वेश्चन आया ना? सिविक्स का मैंने शुरू ही नहीं किया तो एक कैसे आएगा? हमने ज्योग्राफी किया अभी तक। ज्योग्राफी का है।
जब आप सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर करवा रहे थे ना मैम, तब मैं नहीं था, सिर्फ सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सिर्फ इक्वालिटी कराया था मैम। आपको एसपीजीटी की ऐप होगी ना, उसमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग चैप्टर्स के मिल जाएंगे, देख लेना मैम है। वो तो मैंने मोबाइल चेंज किया है मैम, इसलिए वो सब डिलीट हो गए मैम वीडियोस। ओके चलो प्रसन्न, फर्स्ट वाला एमसीक्यू बोलो। People of different regions, God, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat apparently fled before his Peasants? Any else want to try the answer? Vedant, Daksh? क्या वेदांत? वो क्या बोल रहा है, मुझे तो उसकी आवाज ही नहीं Armies. Yes. Yes. चलो दिया. Name the Yes, group who asserted their political importance during the period between 700 to 715. D. Maratha, Sikhs, Jats, Ahms, and Kshatriyas. Yes. Tirth. Third one. People Yes, who copied manuscript by hand was known as. मैम मेरे को पता ही है मैम जस्ट ए सी। मैम मेरे को पता था मैम ये। ए नहीं बेटा, स्क्राइब्स। मैंने आपको टेक्स्ट बुक में टिक भी करवाया और उसका डेफिनेशन भी लिखवाया, अगर आपको पता हो तो। धारा Yes, ma'am. Babur. नहीं, सही बात है। दक्ष राइट है? नहीं, मैम क्या नहीं? राइट, Tara was right. Daksh, I was checking you. Daksh, fifth वाला बोलो. Were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. What was collected? Very good. Manuscript को कहाँ पे रखते थे दक्ष? Archives. Yes. Very good. Your exams are there ना? Your exams started ना? Yes, ma'am. English की आती. Okay. हर्ष, सिक्स्थ वाला आंसर दो. Yes, ma'am. सिक्स्थ वाला. Yes. Ma'am, Quran. Yes. प्रसन्न, सेवेंथ का आंसर दो. Yes, ma'am. मैम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर राजपूत नहीं. ध्वनित. मैम इसका आंसर आएगा मैम इसका सी या फिर डी, दोनों में से। रुतवा, वेदांत मुझे पता है तुम्हें आंसर है, पता है वेदांत. मैम बोल भी दिया किसी ने. वेदांत क्या आंसर बताया? पैट्रॉन. पैट्रॉन राइट है. ये डेफिनेशन भी आपको टिक रहा है. ये इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल है जो दूसरे पर्सन को सपोर्ट करता है. दूसरे पर्सन यानी किसको? आर्टिस्ट को, क्राफ्ट को, क्राफ्ट पर्सन को, लर्न मैन को, नोबल को. वो एक वेल्दी पर्सन दूसरे को एनकरेजमेंट के लिए उसको या तो पैसा देता है या उसको ऐसे स्कूल में डालता है, उसको पैट्रॉन बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? पैट्रॉन. पैट्रॉन. रुतवा, अभी ये 8th वाला करो. चलो. यस मैम. ए. डी आएगा बेटा. 1356. ओके मैम. मैम उसमें क्लियरली लिखा है 14th century chronicler. इससे ये आइडिया. चलो जिया. यस मैम. 9th वाला ट्राई करो. मैम हैंड्स. ये तो इजी था जिया. मितवा.
Yes, ma'am. चलो 10th वाला ट्राई करो. Which of the following is not a literary source? Ma'am, literally source मतलब चलो, दो सोर्सेस थे, आर्कोलॉजिकल सोर्स और लिटरली सोर्सेस. लिटरली सोर्सेस जो लिखा हुआ होता है, अगर मैं उसका मतलब बोलूंगी तो ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. लिखा हुआ मैम मैन्युस्क्रिप्ट. चलो दक्ष, सही आंसर बताओ उसको. मैम कैन आई टेल प्रसन्ना? इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शंस नहीं, कॉइन्स. लिटरली सोर्स में आर्कियोलॉजिस्ट में कॉइन आता है. मैन्युस्क्रिप्ट आता है, जो बाहर के ट्रैवलॉजी होते हैं वो उनकी बुक में लिखते हैं. वो सब कॉइन्स जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढा होता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स आ जाता है. दक्ष समझ में आया? मैम मुझे पता है. चलो तीर्थ, यस अभी 11th वाला बोलो, यस मैम प्लीज. क्योंकि ये दक्ष ने एक्चुअली आंसर दे दिया है. मैम बी. बी आर्काइव्स. यस राइट, ओके. अब कौन है बाकी? वापस शुरू होगा ना. जिया, चलो. पीरियड इन विच ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री. मैम इसका आंसर आएगा हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीरियड्स. गुड. वनित 13 वाला ट्राई कर. What led to the migration of forest dwellers in 8th century? मैम ट्रीज कट. आधा सच था. ग्रेजुअली उन्होंने फॉरेस्ट कट करना शुरू किया. ये पता है क्या, कहाँ पर आंसर है वेदांत? जो हमने इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर वाला मैंने नहीं समझाया था आपको? ये इंटरनल फ्रंटियर का है. ओके चलो, अभी हर्ष 14 वाला ट्राई कर बच्चा. यस मैम. यस मैम. अभी मैम इट्स तेलंगानी. नहीं, राइट. तेलंगानी, ये तो मुझे नहीं याद था सच बोलूं तो. मैम वहां पे पहले से यूज होती थी, बट बाद में कर्नाटका अलग हो गया तो उनकी लैंग्वेज बदल गई. यस. चलो, अब खुशी चली गई क्या? प्रसन्न 15. Dash frame their own rules and regulation to manage the conduct of their members. मैम ए. नहीं, जाति आएगा इसका आंसर. और उन्होंने पंचायत भी सेट किया था, है ना दक्ष? यस. जिया, जाति पंचायत. जाति पंचायत. Who wants पर to try उनको मेमाई में? रुतवा. Yes, रुतवा. राजपूत. Yes, राजपूत. मैम राजपूत एक पता चलता है मैम. है ना? राजपूत. Yes, Easy वाला ma'am. बोल दिया ना उसने. हाँ यस मैम. चलो, दक्ष, who said common people do not know Sanskrit, only Brahmins do? अकबर. हैं? मैंने अमीर खुसराओ. तो फिर अकबर कहाँ से आ गया? मैम थोड़ा 4 लेसन का हो गया था. हाँ. वनित, हाँ, यस मैम. ये वाला ट्राई करो. Dash was a 14th century chronicle. Who was the 14th century chronicle? मैम सीरज खान. नहीं. दिया. अच्छा, जिया को आंसर पता है, बोलो जिया. मैम ये जो मीनाजीराव सिराज है वो. ज़ियाउद्दीन बारानी. नहीं मैम वो 13th का था मीनाजीराव सिराज. ज़ियाउद्दीन बारानी. Okay, you have to remember all this thing properly. दिया परमार 19 ट्राई करो बेटा. A. Ali.
Ma'am, can I go out and bring my bottle of water? Beta, now only 5 minutes are left. Right now you were drinking ना, it's okay. 5 मिनट के बाद पानी पी लेना. Okay, ma'am. तीर्थ 20 वाला try करो बेटा. Yes, ma'am. In the regions of the Holy Quran of India. Ma'am, C. C he is telling. Vedant, right? No, ma'am. A. No, ma'am. It is merchants and migrants, beta. Kshatriyas doesn't play any role in this. Sikh doesn't play any role in this. Not even Hindu. Hindus were also not interested. Merchants यानी जो बाहर से ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं और माइग्रेंट्स यानी कि जो बाहर से यहाँ पे आते हैं. ठीक इंडिया है? पसंद आ गया तो उन्होंने यहीं पे सेटलमेंट ले लिया. Yes. Ma'am, can I say this? Yes, you can say this. Yes, ma'am. New foods and beverages were arrived in the subcontinent where A. Potatoes, pulses, chilies, cabbage and coffee. No. गलत. Potatoes सही है. Potatoes तो सब में सही है. मैम मैं लास्ट कैबेज नहीं देखा था. Corn, chilies, tea and coffee. Okay. मैम चिलीज भी सही है. हाँ. चलो प्रसन्न 222 ट्राई कर लास्ट वाला. मैम मेरा civics का मैम revision- B18. Yes. Let's see. हाँ, even I don't know. Right. चलो अभी civics का करते हैं. मैम 5 मिनट बाकी हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. एक ही शेयर कर दूंगी ना मैं. मैम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना. ओम प्रकाश में नाउ आएगा मैम शायद से मेरे को. मैम Yes बेटा. मैम आई हैव अ डाउट इन हिस्ट्री. बोलो. मैम इसमें एक एमसीक्यूज में आंसर बाबुर था और उसमें 13th सेंचुरी लिखा हुआ था. पर मैम 13th Yes, ma'am. I was also saying that only. I have written in chat also. अच्छा. मैम उसमें मीनाजी सिराज आता है. Yes, ma'am. Minaji Siraj. Okay. सब एक बार उसको प्रॉपर्ली अंडरलाइन करके लर्न कर देना. ठीक है. ओके मैम. ये फर्स्ट वाला आप सबको नहीं देखना है. Ma'am, I know the answer. What? C. Tava Matsya. हाँ, but it is not there in our course. Yes, ma'am. it is. चलो सेकंड से हमें शुरू करना है. दक्ष. Yes, ma'am. Which of the following is the work of Om Prakash Valmiki? Juthan. चलो राइट. वेदांत सेकंड वन. Universal Adult Franchise. राइट. धारा फोर्थ वन. यस मैम. मैम डी. एक्चुअली ऐसा आएगा तो नहीं. A. जिया. मैम जो फर्स्ट वाला है वो. No. You all were African American. C, ma'am. C. You all were treated unequally. No, ma'am, they are treated unequally. हाँ अभी खत्म. ध्वनित. Dash is a key feature of democracy and influence all the aspects. हाँ. Equality. Yes, equality वो फर्स्ट लाइन में मैंने मार्क करवाया था. Yes, ma'am. ये तो याद है. हाँ. तीर्थ. One of Yes. more common form of inequality in India is. Ma'am, वेदांत को देखते Ma'am, हैं. can I? मैम वो मैम वो याद नहीं. मैम कैन आई टेल प्रसन्ना. Ma'am, can I? बी. प्रसन्न ट्राई करो. बी. प्रसन्न. मैम सत्य सिस्टम. नहीं. बी. मैम मैंने सुना. कास्ट सिस्टम. मोस्टली कॉमन है अनटचेबिलिटी. कास्ट सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिस होती है. चलो. Yes. हर्ष है कि हर्ष भी गायब हो गया.
देखा, धीरे धीरे फिर वो जाने लगते हैं, मुझे पता होता है। दिया परमार, अफ्रीकन अमेरिकन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट US. यस, चलो राइट। मितवा, which article in India Constitution defines equality and prohibits any kind of social मैम discrimination? फर्स्ट पेज पे लिखा है। मैम सी आर्टिकल 15। Yes, this is very very important question. Daksh, तू तो ये लर्न करना, हाँ, एग्जाम में आएगा। Okay. मैम मेरे को पता ही था। चलो अभी कौन है? मितवा, मैम इसको तो आपने अभी दिया। ओके ओके, दिया। मैं बोलूं? Diya, Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out the school in large number. This is a combined outcome of the following. B. Lack of good quality school facilities for Yes. these communities. मैंने तो इसके पहले ही दिया था। नहीं बेटा, यहाँ पे बोला है this is a combined outcome of the following except poverty, lack of this and corruption की वजह से, इसके वजह से नहीं वो लोग करते, राइट? चलो वेदांत, Indian Constitution provides equality to All persons. yes. Tirth, who is the father of Indian Constitute? मैम सी। No, yes, sorry, right. Chalo. Okay, everyone. Which state was the first state in India to introduce midday मेरे को पता है। जी आप बोलो। तमिलनाडु। पता था मैम ये। Okay. चलो, should I stop now? No, ma'am. नो मैम। नो मैम 5 मिनट और ले लो मैम। यस मैम। बस मैम 6:40 तक ले लो। नहीं, मैम 9 मिनट बचे। मैम सुनो ना। सुनाओ ना। मैम मैं कह रहा था कि आप है ना कहूत ऐप से करो ना ये सब। क्या बेटा? कहूत ऐप मैम। क्विज कौन सा ऐप? कहूत कहूत ऐप। ये कौन सा ऐप लेकर आया? मैम वो क्विज होता है उसके अंदर। और मैम उसमें आपके अपने क्वेश्चन डालने हैं और उसके पॉइंट्स भी मिलेंगे और फिर पोडियम भी होगा लास्ट। मैम फिर रैंकिंग दिखाएगा सबसे तो ऊपर सब कौन है आपको वैसा। खुद करना है बेटा। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज है, मैं अलग अलग चीज खोल के आपको एमसीक्यूज करवाती हूँ, पर आपको क्विज वाला आपको खुद करना है। यस मैम। मैम आज स्कूल में भी ऐसे टेस्ट ली थी गूगल फॉर्म में। मैम मतलब उसमें टिक नहीं करना होता, एक प्रोग्राम ही होता है जिसमें एक मैम आंसर गेम के लाइक बाद एक होता है। आता है वैसा। यस मैम गेम लाइक। पर उसके अंदर आप रैंकिंग भी होती है। तो खुद और उसमें सबके नाम पेंसिल होता है। स्टूडेंट प्रो करके भी ऐप है। एबीसी की तरह। हाँ, हमको स्टूडेंट एवरी प्रो करके 15 भी है। डेज को एक टेस्ट आती है स्कूल में से। ओके, मैम चलो अब अभी नेक्स्ट संडे भी चालू रहेगी ये टेस्ट। नहीं, यानी कि अब दूसरे सब्जेक्ट की आएगी ना बेटा, हाँ मतलब वो साइकिल चालू रहेगा। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएस, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएस, ऐसे ही एवरी संडे ये साइकिल चालू रहेगा। मैम मतलब एवरी संडे होगी हमारी टेस्ट। एवरी संडे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। मैम। Bye, ma'am. मैम।